Sanatan slander, another chapter added to it. Absolutely. It's a controversial remark coming in by Nana Patole, who's drawn the Ravan analogy now to slam Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Let's first listen to what Nana Patole said. चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत माँ जब तकलीफ में है, भारत माँ के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं, तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। सीता जी को ले जाने के लिए रावण भगवा कपड़े पहनकर आए थे. What is Nana Patole really trying to say here by talking about Ravan wearing a saffron robe when he abducted Sita? One will really have to analyze this and ask counter questions to Nana Patole. A very, very controversial statement coming in while criticizing Yogi Adityanath. He talks about Ravan and says that Ravan wore a saffron robe when he was abducting Ma Sita. What is Nana Patole trying to say here? On the other hand, we've been highlighting all the statements that have come in so far by the leaders in the opposition on Sanatan. And then there were some who maintained distance from it while others joined the bandwagon. They are not outraged today by their own netas who openly gave anti-Sanatan statements but are questioning Sambit Patra. And amidst all this comes in another controversial statement by Nana Patole, who says Ravan abducted Sita in a saffron robe. He was talking about Yogi Adityanath. The big question is, why drag in Sanatan in every single political debate? Srushti is joining us on the broadcast now with more details. Srushti, why is Nana Patole talking about Ravan and why is he bringing in Sanatan every time? He says, Nana Patole says Ravan wore a saffron robe when he abducted Sita. Srushti, can you hear me? Srushti, if you are with us on the broadcast, details on what Nana Patole said. Okay, I believe... attack Sanatan Dharma, and what he has said exactly is that why doesn't Yogi speak about the rights which was brought in from China for 10 years? Why doesn't he talk about the issues in the country? And he is also the person who wears saffron clothes, and Ravana was also the same person who wore the saffron clothes while he abducted Sita Mata. So these are the statements given out by Congress State President Nana Patole, which has stirred the political environment now. The BJP leader Ram Kadam has attacked Nana Patole and other Congress leader, mentioning the fact that time and again Congress leaders are attacking Sanatan Dharma, and they cannot they cannot fight these elections out. That's why they are making out such statements. However, why exactly these statements were put up by state president, that is the big question, is what Ram Kadam is asking. There are going to be multiple statements. Everybody is going to analyze and interpret it as per their understanding. One may also question, is Nana Patole trying to link it to crimes that are being committed in the guise of saffron robe? Is he insulting and questioning everybody who wears a saffron robe? We have Gopal Shetty of the Bharatiya Janata Party joining us. Gopal Shetty जी, क्या कहना है आपका? नाना पटोले कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हुए कि रावण ने भी भगवा वस्त्र पहना था मां सीता का जब अपहरण हुआ था. देखिए, नाना पटोले हो या तो कोई भी हो, हिंदुस्तान में भगवा का सम्मान जो देश को मानने वाले लोगों ने करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन. और जिस दिन ये सारे हिंदुस्तान के लोग भगवा को मानेंगे, देखिए मैं कभी हिंदू मुसलमान करता नहीं हूँ, लेकिन जब मुस्लिम समाज के लोग हरा को अपना कलर मानते हैं तो हिंदुओं ने भगवा को क्यों नहीं मानना चाहिए? फिर वो कोई भी पार्टी का होगा तो उसने सब एक लाइन पकड़ के चलना चाहिए, तब ये देश आगे बढ़ेगा. सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का एक ही ध्येय है कि हमको देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन देश आगे बढ़ते समय आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, तो फिर देश आगे बढ़कर क्या करना है? उसको देश को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारा अस्तित्व भी कायम रहना चाहिए. इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका मान सम्मान बरकरार रहना चाहिए, और बाकी भी जो लोग देश में हमारे रहते हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए. क्या है इस बात का? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए नाना पटोले ने ये कहा, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सनातन को लेकर नाना पटोले दे चुके हैं.
इसलिए मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ थोड़े अल्पसंख्यक लोगों का वोट लेने के लिए बहुसंख्यक लोगों का इस प्रकार से अपमान करना, ये आने वाले दिनों में और भारी पड़ेगा उनको। अभी भी अगर समझ जाते तो अच्छा है, और हम तो ये चाहते हैं कि सारे देश के लोग मिलकर आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाइए जी। और इस प्रकार का बात करने वाले लोगों को आने वाले दिनों में लोग दिखा देंगे। अब तो दिखा दिया है। एक सवाल और है मेरा आपसे, क्योंकि अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो हर कोई इसको अपनी तरीके से देखेगा, इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवा वस्त्र पहनकर और उसकी आड़ में लोग क्राइम कर रहे हैं? क्या ये कहने की कोशिश नाना पटोले कर रहे हैं? देखिए, अगर ये एक अलग विषय हो जाता है कि मानव जाति में कोई किसी का 100% लोगों का गारंटी ले नहीं सकता। हम ये बिल्कुल कहते नहीं कि सभी हिंदू एकदम अच्छे और सच्चे करके, बिल्कुल नहीं कहते हैं। इसके लिए किसी को भगवा का अपमान नहीं होना चाहिए। भगवा भगवा है, भगवा है, इसलिए भगवा के बारे में इस प्रकार का बात किसी ने भी नहीं करना चाहिए। भगवा पहनने वाला अगर कोई गलत करता है तो उसको कानून है, वो कानून अपना काम करेगा। ऑल राइट। गोपाल शेट्टी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। भी हैं of the Shinde faction. Krishna Hegde ji, if you can hear me, your first comment, your first thought when you hear Nana Patole saying that Ravan wore the saffron robe when he abducted Sita. I think Nana Patole ji has to cover up for all the debacle the Congress is facing in Maharashtra. Okay, Mr. Hegde, I apologize, but I'm interrupting here. We have Sanjay Nirupam as well on the broadcast. Sanjay Nirupam, your thoughts? अब नाना पटोले कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हुए कि रावण ने भी भगवा वस्त्र पहना था जब मां सीता का अपहरण किया था। देखिए, ये नाना पटोले हों या ये कांग्रेस के जो लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर जो हिंदू अस्मिता है, हिंदू पहचान है, हिंदू परंपरा है, उसके खिलाफ हैं ये लोग। भगवा हिंदुस्तान का रंग है, हिंदुस्तान की जो परंपरा का एक हिस्सा है, उसकी पहचान है, उसकी अस्मिता की पहचान है। तो बिकॉज दे आर अगेंस्ट राम, दे डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ राम, बिकॉज दे डोंट हैव बिलीव इन राम, that is why they always oppose whatever is related to Hindu religion or Hindutva. So the Congress party is already suffering a lot because of this kind of attitude, and Nana Patole type of people are just fooled. They don't understand the feeling, they don't understand the tradition and the culture of this country. That is why they can speak like this. Interesting, you say they don't believe in Ram, but when it comes to criticizing the chief minister of Uttar Pradesh, they are invoking Ravan. तो ये बहुत ही दिलचस्प है जो हो रहा है इस वक्त। संजय निरुपम, my question also is, does the Congress party, not really understand politics? ये समझ नहीं पा रही है कि ऐसा करने से कितना नुकसान हो रहा है, या ये जानबूझकर हो रहा है? नहीं, ये समझ रहे हैं और ये सब जानबूझ के हो रहा है। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इस देश के एक संत हैं, और संत के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहते हुए वो एक समाज सेवा कर रहे हैं, और उनके वस्त्र और उनके वस्त्रों के रंग के ऊपर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये साबित करता है कि राम के अनुयायी नहीं है, रावण के अनुयायी हैं। और पहले भी इन्होंने एक बात कही थी कि ये भगवान राम का जो मंदिर बना है अयोध्या में, उसका शुद्धिकरण करेंगे। मतलब अब तक राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, अब राम को अशुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, जबकि राम एक पावन व्यक्तित्व है, महापुरुष हैं। लेकिन राम की धारणाओं में, राम की भावनाओं में और राम के जो विचारों में और राम ने जो आदर्श और मूल्य स्थापित किए उसके सरासर विरोध में हैं। और यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती जा रही है, और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त नुकसान होगा इन्हीं हरकतों की वजह से। ऑल राइट, संजय निरुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कृष्णा हेगड़े